الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی مشکور ہیں اس برادری دے بالخصوص بھائی حسن صاحب اور نظر حسین صاحب، مظہر باز صاحب اور دیگر تمام احباب، اور مشکور ہیں جناب تمام شناخان مصطفیٰ و علماء ذیشان، بالخصوص جناب حضرت علامہ قاری محمد شاہد اقبال یوسفی، آپ لاہور تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے، اور دیگر شناخان مصطفیٰ سب بھی مشکور ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر قبول اور منظور فرماوے، اور اس کی برکات اس دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرماوے، آمین۔ اگر قبلہ صاحب ایک جگہ تے آرام فرماؤں دے مہمان خانے کے اندر تو پھر تو میں بیان کردہ، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس پنڈال اور سٹیج تے کافی تعداد ہے مہمان دی پڑھن والی، تو میں اپنی حاضری دا صرف جڑا مقصد ہے تھوڑے سامنے پیش کرنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو سلسلہ ہے بھائی محمد اقبال صاحب چلا رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز میں تو سنتے ہی رہ جاندے ہو، لیکن قبلہ دا خطاب سننا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے دلوں خطاب سن کے ساڑھے دلوں ایک روشنی اور نور عطا فرماوے، تاریکیاں تو محفوظ فرماوے۔ محفل میلاد دا کوئی مقصد ہوتا ہے الحمدللہ بحیثیت مسلمان اور بالخصوص جماعت اہل سنت دے نوجوان اور بزرگ اساں نہ جانے کتنی محفلیں سنتے ہیں الحمدللہ، تو ہر محفل دے اندر اگر بندہ تھوڑا تھوڑا ہی اپنی باطن دی صفائی ستھرائی دا اگر خیال کرے اور تھوڑی تھوڑی اگر محبت دے اندر اضافہ کردہ چلا جائے اور اس محفل دے صدقے عمل دی طرف تھوڑا گامزن ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ جلدی ہی انشاءاللہ اس منزل تے پہنچ سکتے ہیں جتے اللہ اور اس دے رسول دی منشا ہے، اور جتے قوماں و اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر سرفرازی عطا کردہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل خیر اور جذبہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم صلی اللہ
اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کرم سیاں میں لکھ کیتا کہ میں ایک ککشاں ککھاں چوں بہت بھلا تیرے کرم سیاں میں لکھ کیتا لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے تیرے واسطے کدی ناکک کیتا لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے تیرے واسطے کدی کیتا تے وڈیا جگریا بالیا محبوبہ اپنے کرم تو سانا وقت کیتا کردہ انج سردار کوئی ویکا کردہ انج سردار نہ کوئی ویکا جن تساں غریب مدد کیتا جن تساں غریب مدد کیتا ناتا جوڑ حضور دے نال کھنا جڑا کسے قیمت ٹوٹ سکتا نہیں دل دی یاری عشق دا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا ذکر رسول ہوے تاکو اس مکان نو لٹدا نہیں بانے کلی دا ککھ نہ روے ناسدے بانے کلی دا ککھ نہ روے ناسدے چھٹدا نہیں سچو دامن حضور دا چھٹدا باویں کلی دا ککھ نہ روے ناسدے سچو دامن حضور دا چھٹدا نہیں سچو دامن حضور دا چھٹدا اچھے بڑے عالم فاضل ہوئے اچھے ملا منڈت سا بڑے عالم فاضل ہوئے اچھے ملا منڈت سا رب دا کھوج قرآن بیا اج کر دے اد سجدے کر
جیڑا یار منوا جیڑا یار منوا جیڑا یار ناچ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دوست بعد انشاءاللہ اجازت کر شادیہ تو شکر غزار نے کر شادیہ تو شکر غزار نے تیرے گھر وچ گھر وچ آئے سرکار نے کر شادیاں تو شکر غزار نے تیرے گھر وچ آئے سرکار نے تیرے گھر وچ آئے سرکار نے جس سے تو پھیل رب رکھی عزتاں دی پگنی جس دے تو پھیل پیا وسدا جگنی جدے سر رب رکھی عزتاں دی پگنی عزتاں دی پگنی تیری چولی پیا او گو سردار گھر وچ آئے سرکار نے تیرے گھر وچ آئے سرکار نے کر شادیاں تو شکر غزار نے تیرے گھر وچ آئے سرکار نے تیرے گھر وچ آئے سرکار جزاک اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بلا تمہید و تغییر میں دعوت خطاب دے رہے ہیں میرے مسلک عظیم نام عظیم سرمایہ سرمایہ علیہ سنت فخر علیہ سنت ترجمان علیہ سنت حضرت والا شان حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد بن شاہد بادی یوسفی صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کتاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے اچھا میری گل سنو میں شعر کوئی نہیں پڑھنا انج کرتے ہیں بھئی 5 تن دی نسبت نال نا آپ حیدر حیدر کر رہے ہے نیت جیڑا بندہ 5 تنی ہے 2 میں ہاتھ بلند کرے جیڑا بندہ 5 تنی ہے سارے 5 تنی نے میں حیدر حیدر تسی علی علی انج ہے نا ایک باری ذرا ترتیب نہ نعرہ لانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی بندہ ہے کوئی جوان ہے ہاتھ چوک کے حیدر حیدر علی علی حیدر 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 تو پیچھے بھی تو بندے نے انہوں نے ہاتھ دھلے نے اللہ انہوں نے توفیق دے ہاتھ چکن دے بولن حیدر 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 شیر آکھیں تیرے خیال کا رستہ جہاں پہ جائے گا تیرے خیال کا رستہ جہاں پہ جائے گا میرے مزاج کا دریا وہاں پہ جائے گا در تراب کا منکر شیطان بنتا ہے ابو تراب کا منکر کہاں پہ جائے گا 2 میں ہاتھ چوک کے لگار نگار گلی گلی لگار نگار گلی گلی پروفیسر محمد شاہد اقبال یوسفی
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, एक बार सब आवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह लुत्फ़ व एहसान कि मालिक लम यज़ल ने हमें इस पुरफ़ितन दौर में ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम उसकी याद की खूबसूरत तर्ज को अपना कर बैठे हैं। दुआ करें कि मालिक कायनात ने हमें ये जो हाल अता फ़रमाया है, ये हाल सलामत रखे। आखो ज़रा गज वज के आमीन। ये हाल है सलामत रखे। हाल में जीना, हाल वैसे एक होता है माजी मुस्तकबिल हाल। मैं आपको जो हाल बमाना बता रहा हूँ वो ये इसमें भी है कि मौजूदा, और उसमें भी जो मैं कह रहा हूँ वो इसमें भी बमाना में है कि हाल बंदे की जो तबीयत और हालत है। तो अल्लाह करीम ने हमें हाल में जीना नसीब फरमाया है, और दुआ करो कि अल्लाह ये हाल सलामत रखे। अल्लाह ये हाल है सलामत रखे। और हर हाल एक हाल है, पर खूबसूरत वो हाल है जो मुस्तफ़ा का हाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि नबी अलैहि सलातु वस्सलाम का हाल है। जो हुजूर के हाल में जिंदगी गुजरे उस जैसा खूबसूरत हाल कायनात में कोई नहीं। खूबसूरत कायनात में हाल है कोई नहीं है। सहाबा ने ना एक दिन मशवरा किया, मैं तमीदन बात कर रहा हूँ, मैं मौजू फिर आगे आता हूँ। एक दिन सहाबा ने मशवरा किया कि उमर बिन खत्ताब का दौर खिलाफत, सहाबा ने मशवरा किया कि अब तो माल की बड़ी रेल पेल है। उमर फारूक सैयदना सदीक अकबर के दौर में गुर्बत थी, तो चलो बात समझ आती है। अब तो बड़ी फतोहात हो गई, बड़ा माल आ गया, माल गनीमत आ गया। अब मुसलमानों में इस्लाम बड़ा अमीर हो गया, माल गनीमत आ गया। तो मशवरा किया कि उमर बिन खत्ताब जो इतनी बड़ी सल्तनत के शहनशाह हैं, उन्हें सफीर मिलने आते हैं, बाहर से लोग मिलने आते हैं, उमर को मशवरा देते हैं कि जरा कुर्ता भी कोई नया ले ले। मेरी बात गौर करनी, मैं आपको कोई माना देना चाहता हूँ। अगर आप बोल के समझ के बात समझेंगे तो मैं खिताब कर सकूंगा, वरना मैं भी टाइम गुजार के ही चला जाऊंगा। है तो फरमाया, मशवरा देते हैं कि उमर कुर्ता पुराना है, कोई नया ले लो। तुझे बड़े नए दूर दूर से लोग मिलने आते हैं। अब तो उमर का बड़ा नाम हो गया है। अब तो कैसर रूम उमर का नाम सुन के कांपता है। अब तो कैसर और किसरा के महल्लात कांपने लग जाते हैं उमर का नाम सुन के। अब तो उमर एक इतना बड़ा शहंशाह बन गया है। उमर, हम कह ना दें कि उमर एक कुर्ता ही नया ले ले। उमर एक कुर्ता ही नया। मशवरा हो गया सहाबा में, फैसला तय हो गया कि उमर को मशवरा देना है। जब ये बात तय हो गई ना, तो उन्हीं में से किसी ने कह दिया कि ये बात करेगा कौन। तो पंजाबी कहते ना भाई, शेर दी मुछ नूं हाथ कौन लाएगा। ये बात करेगा कौन, हिम्मत कौन करेगा इस अमल की, कौन करेगा ये बात। उन्होंने कहा यूं करते हैं, मौला अली से कहते हैं। मौला कायनात का सब हया करते हैं, तो मौला अली से कहते हैं। सहाबा ने सरकार मौला अली की बारगाह में कहा, या अली, उमर से कह दीजिए कि ऐ उमर, अब तो बड़े सफीर मिलने आते हैं,
तो आप जरा कुर्ता नया ले लें। आपने फरमाया नहीं नहीं, ये बात मैं उमर से नहीं कर सकता, ये बात मैं उमर से नहीं कर सकता, पर मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। कहा मशवरा क्या? फरमाया मशवरा ये है कि तुम ये बात सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, वो कह देंगे हजरत उमर से। कहा जी ठीक है। सहाबा इकट्ठे होकर सही उम्मुल मोमिनीन के पास चले गए और कहा कि अम्मा जान, हमने ये मशवरा किया है, अब बड़ी सल्तनत बढ़ गई है, बड़ी रेल पेल होगी, माल भी आ गया है, लेकिन उमर के पास कुर्ता पुराना है, उमर से कहें जरा कुर्ता चेंज कर दे। हाय हाय, 22 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत का मालिक है उमर, आपका पाकिस्तान उसका चौथा हिस्सा भी नहीं बनता। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और कुर्ता पुराना है, कुर्ता पुराना है, वो उमर। आपने फरमाया बात ही कोई नहीं, मैं अभी कह देती हूँ, पैगाम भेजा, फरमाया जाओ उमर को बुला के लाओ। सैयदना उमर बिन खत्ताब को मैसेज मिला कि अम्मा जान बुला रही है, सारे काम छोड़ दिए, दौड़ के आ गए। आप पर्दे में थी, अर्ज की अम्मा जान मुझे देर तो नहीं हो गई, हुक्म फरमाए, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया उमर, सहाबा ने मशवरा किया है और बात उनकी भी ठीक है, अब तो बड़ा माल आ गया है, अब जरा अच्छे दौर आ गया इस्लाम पे, तू ऐसा कर एक कुर्ता नया ले, एक कुर्ता नया ले लो। आपने फरमाया अच्छा, ये बात की तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रोने लग गए। उमर बिन खत्ताब रोने लग गए। जो रोने लगे तो कहने लगे अम्मा जान आप जैसे कहेंगी मैं वैसे कर लूंगा, पर मेरी एक गुजारिश है, ये जिस जुमले के लिए मैंने आपको सारा वाकया सुनाया ना, अब वो जुमला आने लगा है, और अगर वो जुमला समझ आए ना तो मुझे पता चले कि मैं बात शुरू करने लगा हूं, आपको समझ आ रही है। तो उन्होंने कहा अम्मा जान मैं आपकी बात जैसे आप कहेंगी वैसे कर लेता हूं, पर मेरी एक गुजारिश है। फरमाया उमर वो क्या? अर्ज की अम्मा जान मुस्तफा का हाल कैसा था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का हाल कैसा था? अगर तो मैं इस हाल में मुस्तफा के हाल से बाहर हूं तो फिर मुझे कह दीजिए, अगर ये यार का हाल है तो जिस हाल में यार राजी उसमें हम राजी हैं, जिस हाल में यार राजी उसमें हम राजी हैं। तो आपने फरमाया, तो अम्मुल मोमिनीन ने सहाबा को कहा सहाबा रहने दो, उमर को ना छेड़ो, हाय हाय हाय, उमर को ना छेड़ो। तो बंदे जिस हाल में बंदे को रब रखे उस हाल में बंदे को रहना चाहिए शाकिर, शुक्र करना चाहिए। उसने जो इज्जत दी, जो दौलत दी, जो मकाम दिया, जो नाम दिया, जो वकार दिया, जो किरदार दिया, सब कुछ दिया, फरमाया इस पे रहो शाकिर। लेकिन अगर कभी तलब करना हो, अगर तुम किसी दिन मांगना चाहो तो फरमाया क्या मांगो? फरमाया मुझसे मुस्तफा का हाल मांगा, मुझसे मेरे नबी का हाल मांगा करो। और फरमाया वो हाल मुस्तफा क्या है? बोलो ना, वो हाल है, सारे बोलो, वो हाल है मुस्तफा क्या है? कुरान में हम पढ़ते हैं, मैंने जो आया मुबारका तिलावत की, जब हम कुरान मजीद शुरू करते हैं तो पहली की आयत में से है कि आप जब पढ़ते हैं पहला सवाल करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बारी ताला मुझे सीधी राह दिखा, मुझे सीधी राह दिखा। अब वो सीधी राह क्या है आज वही हमने तलाश करना है। वो सीधी राह क्या है? इस्लाम हुआ, लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो कहने लगे हम मोमिन हो गए, हम मोमिन हो गए। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, फरमाया महबूब जिब्राइल जाओ और इनसे कहिए कि कुलू अस्लमना, हम इस्लाम लाए हैं, अभी मोमिन नहीं हुए, अभी हम मोमिन नहीं हुए हैं। फिर एक और मकाम पर रब्बे कायनात ने एक बड़ी अजीब किस्म की बात फरमाई, फरमाया महबूब या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, ऐ ईमान वालो, बोलो बोलो, अगर समझ आती पई तो फिर बोलना है, ईमान वालो ईमान ले आओ। अच्छा कहा क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब भी ईमान वालों से। तो बारी ताला या तो तू ये कहता या अय्युहल काफिरून आमनू, काफिरो ईमान ले आओ, या तो ये कहता या अय्युहल मुनाफिकून आमनू, ऐ मुनाफिको ईमान ले आओ, या तू ये कह देता कि ऐ काफिरो ईमान लाओ या मुशरिको ईमान लाओ,
یا چلو تو یہی کہہ دیتا یا ایھا الناس اے لوگو، تو بات سمجھ آ جاتی کہ اس میں سارے آگئے، مسلمان بھی آگئے، مومن بھی آگئے، منافق بھی آگئے، سب آگئے۔ تو باری تعالیٰ اب تو بتا تو صحیح، تو ایمان والوں سے ہی کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ۔ جب آپ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو، تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اشہد اللہ الہ، بولو بولو، الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ بھی کہہ دیا، یہ بات بھی طے ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنو جو کہا اور جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اب رب کائنات نے اس میں یہ بھی بات طے کر دی ہے کہ اگر کلمہ پڑھے تو مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتی ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، جہاد بھی کرتے ہوں گے، حج بھی کریں گے، یہ سارے عمل تو کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ کرنا، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن تو پھر بھی کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ، پھر بھی تو کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید فقط نماز پڑھنا ایمان ہے، اونچا بولو، ایمان ہے نہیں ہے، فقط روزہ رکھ لینا ایمان ہے نہیں ہے، فقط جہاد کرنا ایمان ہے نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ پھر یہ تو بتا ایمان کسے کہتے ہیں، یہ تو بتا ایمان کسے کہتے ہیں۔ اب نماز بندہ پڑھتا ہے کہ جنت مل جائے، ایسے ہی ہے نا، روزہ رکھتا ہے کہ کیا مل جائے، جنت مل جائے، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے کہ جنت مل جائے، بندہ عبادت کرتا ہے کہ جنت مل جائے۔ وہ کہتا ہے اس کی طلب نماز میں نہ رکھا کرو، نماز کے بعد طلب جنت یہ تو چھوٹی سی شے ہے، یہ کیا ہے، چھوٹی سی شے۔ اب ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان جہاد سے نیچے اترے، آپ نے دیکھا سامنے ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے، حضور اس کے قریب ہونے لگے، حضور نے فرمایا میرے قریب آ، اور وہ پیچھے ہونے لگ گیا، آپ نے فرمایا نہیں میرے قریب آ، وہ کہتا ہے نہیں مجھے ایک بیماری ہے، میرے پاس سے اسمیل آتی، بدبو آتی ہے، لہذا میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں تو میرے قریب آ۔ اتنی بات ہو رہی تھی نا تو وہ پیچھے ہو رہا ہے، سرکار اس کی طرف جا رہے ہیں، اتنے میں سرکار نے آگے بڑھ کے نا اس کو پکڑ لیا۔ جب حضور نے اس کو پکڑا نا، پکڑ کے حضور نے پیشانی پہ بوسہ دیا، جب اس کی پیشانی پہ مصطفیٰ نے بوسہ دیا نا تو ٹھنڈک سینے تک چلی گئی۔ جب سینے تک گئی، جب ٹھنڈک بڑھی، اس نے کہا آج تک مجھے تو میری بیوی نے دور کر دیا، مجھے میری ماں نے دور کر دیا، مجھے میرے بچوں نے دور کر دیا، مجھے میرے اپنوں نے دور کر دیا، مجھے میرے دوستوں نے دور کر دیا، میرے رشتہ داروں نے دور کر دیا، ارے جو مجھ بدبودار کو بوسہ دے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، سرکار نے کلمہ پڑھایا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جنت کتنی دور ہے مومن سے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھ لیا۔ وہ عرض کی یا رسول اللہ اب حکم کیا ہے؟ فرمایا بکریاں جس کی ہیں اسے ہانک دو، وہ سامنے میدان جہاد ہے، وہ سامنے میدان جہاد ہے۔ وہ شخص آیا، ابھی میدان میں اترتے ہی وہ شہید ہو گیا، اترتے ہی وہ شہید ہو گیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جسد کے پاس کھڑے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں۔ میرے آقا بولو نا، حضور کا مسکرانا بھی کمال ہے، ہائے ہائے، حضور مسکرا رہے ہیں۔ جب مسکرا رہے ہیں تو صحابہ نے کہا بندہ نواز یا رسول اللہ عجب ماجرا ہے، کوئی شہید ہوتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہوا، آج آپ اس کے پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا صحابہ مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ شخص جب زمین پہ گرا، ارے جنت کے ملائکہ جھگڑ رہے ہیں کہ استقبال کیسے کرنا۔ تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ ابھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی تھی، ابھی تو اس نے غسل ہی نہیں کیا تھا، ابھی تو اس نے وضو
ही नहीं किया था, अभी तो उसने इबादत सीखी नहीं थी, तो तू जन्नत फकत फौरन दे रहा है, वजह क्या है? उसने कहा वो जो मैंने ऐलान किया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। फरमाया लोगों तुम्हें समझ नहीं आई, नमाज ईमान नहीं है, अरे ज़कात ईमान नहीं है, हज ईमान नहीं है, इबादत ईमान नहीं है, बारी ताला तो ईमान क्या है? वो कहता है मेरे यार के रुख पे मर जाना रुख मुस्तफा पे मर मिटना ईमान है। ईमान ये है कि मुस्तफा की मोहब्बत मन में हो। बोलो बोलो, हुजूर की मोहब्बत मन में हो। अगर नमाज भी हो, रोजा भी हो, हज भी हो, जुब्बे कुब्बे दस्तार दाढ़ियां सब कुछ हो, पर हुजूर का अदब नहीं है ना, तो वो कहता है तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। वो कहता है मैं तेरे अमाल बर्बाद कर दूंगा और तुझे बताऊंगा भी नहीं। अमाल, एक तो अमाल बर्बाद करूंगा, एक तो तेरे अमाल खत्म करूंगा, और दूसरा तुझे बताऊंगा भी नहीं। बारी ताला दसता दे भी तेरे अमाल मुक गए नहीं, नमाज़ां में मिटा छड़ियां नवियां पढ़ लवां, रोजे खत्म कर दिए नए पढ़ लूं रख लूं, मैं तेरी हज खत्म कर दिए दोबारा कर लूं। वो कहता नहीं नहीं, तवज्जो करना, वो कहता नहीं नहीं मैंने बताना ही नहीं है। बारी ताला क्यों नहीं बताना? फरमाया इसलिए ये समझेगा मैं बड़ा हाजी हूँ, ये समझेगा मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ा मुबल्लिग हूँ, मैं बड़ा कारी हूँ, मैं बड़ा मुहद्दिस हूँ, ये अपने आप को समझेगा। पर दफ्तर खाली इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे यार का बेअदब हो मैं उसे तौफीक तौबा भी नहीं देता। जो मेरे यार का बेअदब हो मैं उसे तौफीक तौबा भी, बोलो बोलो, हो तौफीक भी नहीं देता। पर जो मेरे यार का बाअदब हो ना, हाय हाय हाय, जो मेरे यार का बाअदब हो, जो मेरे यार से ताल्लुक जोड़े पुख्ता, जिसका रिश्ता मेरे हबीब से हो पक्का, जिसकी दोस्ती मेरे हबीब से हो पक्की, जिसकी यारी मुस्तफा से पक्की हो, ओदियां नमाज़ां कच्चियां भी होइयां ते मैं मुड़ भी बख्श छड़ांगा। हुण ए ना समझ लेना कि दमी नमाज छोड़ बैना। बिराती अलामा साहब ते कहे भी नमाज दी जरूरत, नमाज फर्ज है। नमाज क्या है? बोलो बोलो, नमाज है फर्ज है, पर नमाज वही कबूल है। वो इकबाल गए ना मदीना पाक, तो मस्जिद में रिढ़ने लगे। लोगों ने कहा पाकिस्तान लाहौर का शायर पागल हो गया है, मस्जिद में रिढ़ रहा है। इकबाल ने कहा मुझे क्या तलब थी रकू की, मुझे खबर क्या थी सजूद की, अरे किसी नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज। कि मुझे क्या जरूरत थी, मुझे सजदों की इब्तिदा नहीं थी, सजदों की जरूरत नहीं थी। तो बारी ताला तो बेटा इकबाल तुझे क्या थी? कहता मैं तो ढूंढ रहा था मुस्तफा के कदम कहाँ लगे, मैं तो तलाश कर रहा था मेरे यार के कदम कहाँ लगे हैं। तो उसने ऐलान किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ, ईमान वालो ईमान ले आओ। अब जब ईमान आ गया तो फिर फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तवज्जो करनी है। फरमाया अब मुझसे सीधा रास्ता मांगो। हजरत इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा कि ये जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सीधी राह है, वो सीधी राह क्या है? बोलो बोलो, वो सीधी राह क्या है? आपने फरमाया लोगों वो सीधी राह कुछ और नहीं, वो मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और उसने ऐलान किया कि ए फला पाने वालों, ए हिदायत ढूंढने वालों, तवज्जो मेरी तरफ, ए रास्ता ढूंढने वालों, ए मंजिल ढूंढने वालों, सुनो, आओ मैं तुम्हें कुलिया बताता हूं। बारी ताला क्या? उसने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। उसने कहा अब यूं करो, अगर फला चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर मुस्तकबिल चाहते हो, अगर मुराद चाहते हो, तो पता है क्या करो, क्या करो? फरमाया कुल महबूबिन से फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, तो फरमाया मेरी पैरवी करो। तवज्जो करनी, मेरी पैरवी करो, मुस्तफा की पैरवी करो, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। तो क्या होगा? वो कहता
युहब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। मैं उन्हें कुलिया समझा के बात इख्तिताम की तरफ ले जानी है, तवज्जो करना। एक होता है महबूब, क्या ऊंचा बोलो, क्या महबूब, ते एक होता है मुहिब। महबूब और मुहिब। महबूब वो होता है जो मोहब्बत करता है, जो मोहब्बत, तवज्जो करनी है, बात बड़ी समझाने लगा। जो मोहब्बत करे वो क्या हुआ, ना सॉरी, जिससे मोहब्बत की जाए वो है महबूब, और जो मोहब्बत करे वो मुहिब। वो क्या है, उच्चा बोलो, वो। और जुमला याद रखना है, महबूब और मुहिब। इसका फर्क समझाता हूं, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। एक दिन निजामुद्दीन से बाबा फरीद ने कहा, आपने फरमाया निजामुद्दीन जी हुजूर, फरमाया महबूब बन से के मुहिब। थक पे हो लगता है, महबूब बन से के मुहिब। तो कहने लगे हुजूर अगर इजाजत हो तो माँ से मशवरा ना करो, इजाजत हो तो माँ से मशवरा ना करो। आपने फरमाया जाओ कर आओ। निजामुद्दीन चल पड़े, जा रहे थे, रास्ते में ना एक मजलूब बैठा था बाबा, उसके पास से जो गुजरे ना तो उन्होंने आवाज लगाई, उसने कहा निजामुद्दीन, पीछे मुड़ के देखा, फरमाया जी अदा महबूब बन से के मुहिब। ताड़ी चौक तो सुभान अल्लाह है, महबूब बन से के, हुन तवज्जो करनी, महबूब बन से के। आप पलट आए, आपने फरमाया ये बात तो मेरे शेख के दरमियान थी, इन्हों की तो पता लगी, इसको कहां से पता चली? आपने फरमाया अच्छा चलो बता, महबूब बना या महबूब बना या मुहिब? ते बाबे ने पता ही की क्या, बाबे ने कहा नहीं जा मानल मशवरा करे, कल मानल मशवरा करके आ। और फरमाया अगर ना मशवरा मिले ना तो कल इधर ही मुलाकात होगी, कल इधर ही मुलाकात होगी। आप चल पड़े। अब यहाँ से ये भी मेरी माएं बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, ये भी याद रखें, फरीद और निजाम माँ बनाती थी। बोली कौन बनाती थी? माँ बनाती थी। आज की माँ के पास वक्त नहीं है, औलाद बेअदब है, बेमुराद है। उस दौर की माँ के पास वक्त था, वो माँ, अब वो माँ जो मुसल्ले के नीचे शक्कर रखती थी और कहती थी फरीद शक्कर अल्लाह देता है। कौन देता है? नमाज पढ़ा कर अल्लाह शक्कर देता है। अलामा साहब मौजूद है। शर्म जो बात वो कर रही थी ना वो झूठ था, ऐसे ही था ना, वो शक्कर ते आप रख दी भाई, वो शरण क्या था? झूठ था। लेकिन अब वो शरण झूठ बोल रही थी और कहती थी शक्कर अल्लाह रखता है, पुड़िया रखती थी खुद। अब रब ने उसके झूठ को सच में बदल दिया, रब ने उसके झूठ को सच में बदल दिया। क्यों? इसलिए कि वो जो रंग रंगना चाहती थी ना, हाय हाय हाय, अल्लाह कुरान में फरमाता सिबगत अल्लाह, फरमाया कह दो हम अल्लाह के रंग में रंगे गए हैं। हाय हाय हाय, हम अल्लाह के रंग में रंगे गए हैं। वमन अहसन सिबगत अल्लाह, और फरमाया अल्लाह के रंग से सोना रंग कहता है। हाय हाय हाय, अल्लाह के रंग से हसी रंग किसका है? तो फरमाया अब जिस दिन रोज रखती थी इसलिए रखती थी कि फरीद उसके रंग में रंगा जाए, फरीद उसके रंग में रंगा जाए। अब एक दिन नहीं रखी, फरीद ने जब बाहर नमाज पढ़ी तो मां ने जब सर सजदे में रखा और कहा बारी ताला मैं तो फरीद को तेरा बनाना चाहती थी, मैं तो फरीद को तेरा बनाना चाहती थी। जब मां ने ये तगोदो की, जब मां ने ये कोशिश की, जब मां ने ये जिद्दोजहद की, जब मां ने ये स्ट्रगल की, तो रब्बे कायनात ने उसको बेमुराद नहीं रखा। उस दिन जब फरीद ने मुसल्ला उठाया तो क्या उठा? अम्मा आज दे शक्कर दा जायका हो रहा है। नारे तकबीर, आखिर तक नारे रिसालत, दो में हज्जा के नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद। तो फरमाया अम्मा आज के जायका और था। अब फरीद को क्या पता था जो शक्कर आज खा रहा है। हाय 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 हाय। तो मैं बात ये कर रहा था, आपने वाकया सुना हुआ है, अर्ज ये कर रहा था कि लोगों वो दौर ये था कि औलाद को फरीद माँ बनाती थी, निजाम माँ बनाती थी, गौस माँ बनाती थी, अरे हजबेरी माँ बनाती थी। आज की माँ ने वक्त बदल लिया, आज की माँ ने अंदाज बदल लिया, आज की माँ ने स्टाइल बदल लिया। वो माँ उठती थी तो सर सजदे में होता था, वो माँ बोलती थी तो जुबान पे पहला लफ्ज कुरान होता था।
अरे उस माँ का अदब और था, उस माँ की तर्ज और थी, उस माँ की हयात और थी, उस माँ की उम्र और थी। बेटे निजाम पैदा होते थे, बेटे निजाम और फरीद पैदा होते थे। हमने तरीका बदल दिया। आज की माँ नमाज नहीं पढ़ती, बाप नमाज नहीं पढ़ता, बाप बेटे के सामने झूठ बोलता है। जब बेटे को बाप कह रहा होता है जा बाहर दरवाजे से कह आपा घर कोई नहीं है, तो फिर तू क्या उम्मीद करता है कि तेरा बेटा फरीद बनेगा? अरे नहीं यार, पहली बुनियाद तूने ही गलत रख दी, पहली इब्तदाई गलत कर दी, पहली सीढ़ी गलत कर दी। ओए ना ना, अरे इनको मुस्तफा की मोहब्बत के जाम पिलाया करो, इन्हें सच के जाम पिलाओ। तो माँ ने, बाबे ने कहा जा निजामुद्दीन माँ से मशवरा करा, अगर ना मशवरा मिले ना तो कल इधर ही मुलाकात हो, याद ही लेना महबूब और मुहिब, तो इधर ही मुलाकात होगी। निजामुद्दीन चले गए, माँ को सारा माजरा बताया कि ख्वाजा साहब ने यूं कहा था, रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने यूं कहा। माँ ने पता ही क्या कहा? माँ ने कहा पुत्र है जा उस बाबे को लो जाके पूछ महबूब बना या मुहिब, हाय हाय महबूब बना या मुहिब। निजामुद्दीन वापस आए, आपने वहां आके देखा बाबा वहां नहीं था, बाबा वहां नहीं था। आपने लोगों से पूछा कल यहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे, वो कहाँ गए? उन्होंने कहा वो तो मर गया, हाय हाय वो तो मर गया। आपने फरमाया ऐसे कैसे हो गया? उसने कहा था मैं मिलूंगा। कहा अच्छा चलो ये बताओ, मर गया तो उसकी कब्र ही बता दो, मैं उसकी कब्र पे चला जाऊं। उन्होंने कहा काहे की कब्र? हाय हाय हमने तो कभी उसे नमाज पढ़ते नहीं देखा था। बात वही आ गई ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, अरे ईमान वाले तो थे। और उन्होंने कहा हमने तो कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, हमने तो कभी ज़कात देते नहीं देखा, हमने तो कभी नहाते नहीं देखा, हमने तो कभी मस्जिद जाते नहीं देखा। तभी तो इकबाल तड़प पड़ा, उसने कहा जाहिद किसी रिंद को निगाह कम तर से न देख, अरे शायद के उस करीम को तू है या वो पसंद, कि पता नहीं वो किस रंग में राजी था। उन्होंने कहा हमने उसको उठा के कूड़े के ढेर पे फेंक दिया, वो पड़ा है। निजामुद्दीन पास गए, आपने फरमाया वाह बाबा कल तो बड़ा जानी जान बनया बनो, हाय हाय समझ आती पई है, कल ते बड़ा जानी जान बनया हो, अपना पता कोई नहीं दिया आज मुक जानी, हाय हाय अपना पता नहीं था कि आज मुक जानी, खत्म हो जानी है। ये बात की ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, सरकार ने फरमाया मूतु कब्ल अन तमूत। मैं इसलिए पहले हवाला दे रहा हूं कि कहीं वो जुमला सुन के आपके ज़हन में कोई सवाल ना आ जाए। सरकार ने फरमाया मूतु कब्ल अन तमूत, मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ। तो सुल्तानुल आरिफीन फरमाया मरण तू पहला मर गए बाहू ता मकसद हाथ आए हूँ, कि मरने से पहले एक मौत है। जब बंदा मरने से पहले मर जाए तो फिर मौत उससे पूछती है मैं आऊं के ना, हाय हाय मैं आऊं के ना आऊं। इतनी बात की ना कि निजामुद्दीन ने कि बाबा कल तक ये थे मिलांगे, ते अपना पता कोई नहीं। जब इतनी बात की ना ते बाबा उठ के बह गया। हुण 43 वाले हो जे हुण भी तुहाडी ठंडी सुभान अल्लाह रही ना तो मैनूं लगेगा कि शायद तुहानूं गल समझ नहीं आई। तो आपने फरमाया कि वो बाबे ने पता ही की किया, बाबे ने क्या निजामुद्दीन तुझसे वादा किया था कल इधर मिलूंगा, इसीलिए तो किसी को दफनाने नहीं दिया, इसीलिए तो किसी को दफनाने नहीं दिया। हुण जुमला सुनी जिसके लिए मैंने तुझे पूरा वाकया सुनाया है। अब फरमाया आपने फरमाया अच्छा बाबा बता महबूब बना या मुहिब? बाबे पता ही की क्या, बाबे ने क्या निजामुद्दीन तवज्जो करी, क्या निजामुद्दीन फरमाया जी आदम महबूब बनी, हाय 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 के बनी महबूब बनी। ते महबूब बन से ना महबूब बनी वो तेरे लाड उठाएगा, वो तेरे लाड उठाएगा, क्योंकि महबूब का खास है। मैं जुमला सादा ये अल्लाह रसूल के लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। महबूब का खास है लाड करना और मुहिब का फर्ज है महबूब के लाड उठाना, हाय 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 जिन्हों मोहब्बत है च लाड चावने ना ना आवन ओ झूठा जे, हाय हाय वो की जे वो झूठा जे। और मैं आपको इसकी मिसाल कुरान से देता हूं कि महबूब के लाड उठाता है या बोलो बोलो उठाता है या
महबूब। अब बात मसला ये है, इधर है मुहिब, तवज्जो करना, इधर क्या है, उधर है महबूब, उधर है महबूब। मुहिब को तलब हुई कि महबूब का दीदार करो। देते बस करनी है तो फिर मुहिब को तलब हुई महबूब का दीदार करूं, तवज्जो, महबूब का दीदार करूं। उसने सफर किया, मेहनत की, जिद्दोजहद की, भूख भी झेली होगी, प्यास भी झेली होगी, सफर की सख्ती भी झेली होगी, मौसम की शिद्दत भी झेली होगी। पहाड़ पे पहुंचे, हाथ बांधे, गुजारिश की, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, सोनिया तैनू वेखना चाहना, अपना आप ते विखा। हाय हाय हाय, जे ते थक पे हो तो मैनू दस देना है, मेरे अपना आप तो दिखा, तुझे देखना चाहता हूं। अब मुहिब की तलब थी, तवज्जो करनी है, तलब किसकी थी, मुहिब की, और महबूब से मांग रहा था दीदार। हुण महबूब दी मर्जी, ओ दीदार करवावे या हाय हाय हाय, ओ दीदार करवावे या ना करवावे। हुण तवज्जो करनी, जब मुहिब ने चाहा रब्बे अरनी, महबूबा दीदार करवा, उन्हें क्या लन तरानी, मैं नहीं करेंगे। शायद आपको इससे भी सादा जुमला ना समझ आए हैं, तो फरमाया कि महबूब दीदार करवा। उसने कहा मैं, ये कुरान की बात बता रहा हूं, मेरी नहीं है। रब्बे अरनी, बारी ताला दिखा, अंजुर इलैक, तुझे देखना चाहता हूं। कहा नहीं, लन तरानी, मैं, बोलो बोलो, मैं नहीं दिखाता। फिर अगली मिन्नत की, अगली मिन्नत पेश की, बारी ताला कौम नहीं मंदी, कौम नहीं मंदी। तो क्या कहा मजबूरी है, दिखा। उसने कहा दिखाता नहीं हूं, झलक डालता हूं। हाय हाय हाय, क्या करता हूं, दिखाना और झलक डालना दो अलग अलग चीजें। हाय हाय, दिखाना वो होता है कि बंदा हिजाब हटाए और यार नु कवे रज के वेख, जदो रज जावे उदो दसी है। तो फरमाया नहीं, दिखाना नहीं, झलक डाली। जब झलक डाली, और वो भी डाली कोई दूर पहाड़ पे, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहि सलाम बेहोश हो गए। जब मूसा अलैहि सलाम होश में आए, तो जो मूसा अलैहि सलाम को तकता वो बेहोश हो जाता, वो नबीना हो जाता। अब तवज्जो करना, अब इधर कौन था, मुहिब, हाँ ऊंचा बोलना, कौन था, मुहिब। उधर कौन था, महबूब। जब मुहिब ने मांगा तो उसने क्या कहा, हाय हाय, उसने कहा, अब बात उल्ट कर ले, अब इधर है महबूब और उधर है मुहिब। हाय हाय, उधर है मुहिब, इधर है महबूब, उधर मुहिब, इधर महबूब। जब मुहिब को तलब, महबूब को तलब हुई, तो कहंदा जिब्राइल, जी बारी ताला, आज जन्नत तो सजा, आज अर्श तो सजा, आज हूरों को आरास्ता कर, आज मलाइका को सफारा कर, आज अंबिया को रुक के भेज, आज अक्सा का दरवाजा खोल, आज मलाइका की सफना। बारी ताला क्यों, अब मेरा यार सुता पे एक जगह, मेरा यार सुता है, इंजी चोपड़ा ने तो फिर अफसोस है, मेरा यार सुता पे की कर है। मैं पूछिया या रसूल अल्लाह, अगे तो तुसी सारी रात जागदे है, हाय हाय हाय, अगे ते सारी रात जागदे है, कदी रकू विच रात, कदी कयाम विच रात, कदी सजूद विच रात, तवज्जो मेरी तरफ, कभी कयाम में रात, कभी जब जाग जाग के ना पैर सुज जाते हैं, पांव पे वरम पड़ जाते थे, उससे देखा ना गया। कहता या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फा, कहता सोनिया सारी रात ना जागा कर, कुछ देर सो भी लिया कर। है सारी रात ना जागा कर। मैंने कहा बारी ताला तेरी इबादत कर रहे, तुझे सजदा कर रहे, तू लायक सजदा है, तेरी इबादत है। वो कहता इबादत अपनी जगह, पर यार दी तकलीफ भी ते नहीं ना देखी जाती। हाय हाय हाय, यार दी तकलीफ भी ते नहीं ना देखी जाती। तो मैं कह रहा हूं तवज्जो करना, जब इधर महबूब उधर मुहिब, जिब्राइल नुमाइंदा भी गले असू, तवज्जो करना, क्या गले असू, नुमाइंदा भी गले असू, फिर बुराक सवारी भी दी, डबल काम कर दे, बुराक सवारी भी दी है, नुमाइंदा भी भेजा है, तवज्जो करनी, नुमाइंदा भी भेजा है, सवारी भी दी है।
ये खुशबू वाले भाई जरा 2 मिनट बैठ, मैं तेन राजी कर जाऊंगा, बैठ हैं। तो फरमाया बुराक भी सवारी, नुमाइंदा भी बेटा, आदा महबूब सुता पे है, आज लेके आ। हाय हाय, आज बारी ताला कहां तक? अक्सा में अंबिया को दिखाना है? आदा नहीं, सिदरा तक लाऊं, ये तो हद है, नूर की हद है, कहां तक लाऊं? उसने कहा नहीं, आज बेहद को ला हद तक ला। हाय 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 हाय, बेहद को ला हद तक ला। आज अच्छा चलो यूं कहता हूं, अगर जुमला हजम हो जावे थे, आज अहद को अहद तक ला। हाय 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 हाय, अहद को अहद तक ला। ना एदे वर्गा कोई ते ना मेरे वर्गा। हाय हाय हाय, ना इन जैसा कोई ना मुझ जैसा कोई। अब क्या कहा? वो तूर पे खड़ा है, कहता लन तरानी, इधर कहता जिब्राइल महबूब को ला, अक्सा से भी गुजर जा, सिदरतुल मुंतहा से भी गुजर जा, आलम लासूत भी गुजर, आलम हाहूत भी गुजर जा, आलम नासूत भी गुजर जा। फरमाया मुस्तफा ने एक जहां ऐसा आया, एक मकान ऐसा आया कि जिथे आलम ही मुक गए, जिथे आलम ही मुक गए। फिर आवाज आई, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। मुस्तफा ठहरिए। हाय हाय, थक पे हो मुस्तफा, ठहरिए, ठहर जाइए। बारी ताला क्यों? हुण सुनी, मुहिब और महबूब दा फर्क दस रहा। वो कहता महबूब ठहर जाइए। बारी ताला क्यों? कहता मस्जिद हराम से लेकर अक्सा तक, अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से आलम नासूत तक, आलम हाहूत तक, आलम लासूत तक, महबूबा उठू तक चल के तू आए, हुण खलो मैं तेरे इस्तिकबाल वास्ते। हाय हाय हाय, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। सल्ला युसल्लू का माना इस्तिकबाल भी होता है। तो फरमाया महबूब अब ठहरिए, मैं आपके इस्तिकबाल के लिए आ रहा हूं। हाय हाय, आपके इस्तिकबाल के लिए आ रहा हूं। सरकार ने वाकया सुना, फरमाया हम करीब हुए। कितने करीब हुए? कहता सुम्मा दना, हम करीब हुए। फतदल्ला फकाना काबा कौसैने औ अदना। कहता इतने करीब हुए, इतने करीब हुए। लोगों में तजस्सुस पैदा हुआ, तजस्सुस होने लग गया कि पता नहीं कितने करीब हुए, कितने करीब हुए। फरमाया इतने करीब हुए, काबा कौसैने औ अदना, 2 कमानों का फासला रह गया। कमान तो समझते हो ना, तीर कमान है, तीर कमान। लेकिन ये नहीं थी। अब मैं आपको बताऊं, अरब में एक रिवाज था, जब 2 कबीले आपस में सुलह करते थे ना, तो रिवाज था एक कबीले का सरदार अपनी तीर कमान उस कबीले के सरदार को देता था, उस कबीले का सरदार अपनी तीर कमान इस कबीले के सरदार को देता था। हुण जुमला सुनी ते तड़प जाई, मैनू लाहौर तक याद रवे कि तू दाद दिती सी। फरमाया जब देता था ना, एदा मतलब ही हुंदा ही कि आज तू दोस्तियां भी एक ते दुश्मनियां भी है। सुभान अल्लाह, एक बार दो में हाथ जोड़ के ऊंची जरा सुभान अल्लाह। आज तो दोस्तियां भी एक ते, बोलो बोलो, दुश्मनियां भी एक ते। रब ने फरमाया लोगो सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैने औ अदना। हम इतने करीब हुए, इतने करीब हुए, तुझे इंतहाए गुर्बत क्या बताऊं। फरमाया इतने करीब हुए कि मुस्तफा तू मेरा, मैं तेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा भी नहीं, जो तेरा नहीं वो मेरा भी नहीं है। अब एक बात ये थी, एक बात ये थी, मैं बात खत्म कर रहा हूं कि मूसा अलैहि सलाम को जो तकता था वो बेहोश हो जाता था। क्या होता था? और मूसा अलैहि सलाम खड़े थे पहाड़ी पे, तजल्ली पड़ी थी अगले पहाड़ पे, तो रंग इतना चढ़ा जो देखता वो बेहोश हो जाता। तो रब क्या फरमाता है, तवज्जो करी, कुरान कह रहा है, कहता है मा जागल बसरो व मा तगा। थक पे हो लगता है, मा जागल बसरो व मा तगा। कहता है मेरा महबूब मुझे टिकटिकी बांध के तकता रहा, आंख ही नहीं झपकी। हाय हाय, टिकटिकी बांध के तकता रहा, आंख ही नहीं झपकी। जब वापस आए, उमर को किस्सा सुनाया, अबू बकर को सुनाया, तलहा को सुनाया, जुबैर को सुनाया। और 23 साल गुजार दिए, कायनात तकती रही, ना कोई नबीना हुआ ना कोई बेहोश हुआ। क्यों? इसलिए कि खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही तूर बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। तो बात वहीं पे वाला है। फरमाया लोगो अब मैं तुम्हें कुलिया देने लगा हूं, अगर मुझसे मोहब्बत करनी है ना
अल्लाह फरमा रहा है मुझसे मोहब्बत करनी है ना, तो तू अगर मोहब्बत करेगा तो बंदा क्या बनेगा? मुहिब। याद रखना है, भूलना नहीं है। बंदा की बनेगा? मुहिब। ते अल्लाह की बनेगा? महबूब। ते महबूब दी मर्जी वो कोई गल मन्ने या हाय 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 गल मन्ने या ना मन्ने, ते ओ की कहता है? वो कहता है सादा सी बात है, तू मेरे यार से प्यार कर, मैं तुझसे प्यार करूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा। अच्छा, जब अल्लाह बंदे से प्यार करेगा तो अल्लाह क्या बना? हाय हाय क्या बना? मुहिब। ते बंदा हाँ 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 क्या बनया? ताई ते खाजा साहब फरमाया जेड़ी जन्नत दे वदा मान करे ना, तेरी जन्नत मूल न बरसो। आखिरी गल तवज्जो, अगर दिल नाल सुन से तो सुनाना, मैं खिताब मेरा टाइम हो खत्म कर रहा हूं, तवज्जो करना है। आदा जेड़ी जन्नत दे वदा मान करे ना, तेरी जन्नत थक पे हो, तेरी जन्नत मूल न बरसू। ते आदा जेड़ी दोजख दे तू डरावे देना, तेरी दोजख मूल न सड़सू। आदा इया जन्नत दोजख शाला कायम रवी। हाय 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 हाय। कहता तू रख अपनी जन्नत पास, तू रख अपनी जहन्नुम पास। मैंने कहा बारी ताला एडा वड्डा शिकवा, खाजा साहब एडा वड्डा शिकवा, वो भी रब नाल, वो भी रब नाल। आदा एवें नहीं कीता। ते खाजा साहब किवें कीता ने? आदा सजना नू सजना दे मान नहीं होंदे। हाय 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 हाय, सजना नू सजना दे मान नहीं होंदे। ते मैं पूछा होएगा की? कहता मुझे बड़ा दावा है, बारी ताला से बड़ा दावा है। पूछा खाजा साहब किवें दावा है? आदा जदों कल क़यामत दा दिन होसी ना, जदों जन्नत और जहन्नम दा फैसला करना सो, तवज्जो, जब कयामत का दिन होगा उसका वादा है असा यब आशा का रब्बू का मकाम महमूदा। कहता है मैं 2 तख्त लगाऊंगा। कितने? आखिरी बारी बोली कितने? 2 तख्त लगाऊंगा। एक पे खुद बैठूंगा, एक पे यार को बिठाऊंगा, एक पे यार को बिठाऊंगा। और फरीद का तखय्युल सुनी, कहता जब मुझे वो महबूब भी बैठा होगा, जब वो मुझे अपने सामने बुलाएगा, मुझे कहेगा फरीद हिसाब दे। हाय हाय हाय, फरीद हिसाब दे। वो मुझसे हिसाब मांगेगा। तवज्जो करी, वो कहता जब वो हिसाब मांगेगा ना, तो मैं देखूंगा उधर, नहीं देखता तो समझ नहीं आया, मैं देखूंगा उधर। हुण फरीद दा यार भी वो ते ओदा भी, इंशाल्लाह मदीने टूर जाओ है। फरीद दा भी ओही ते ओदा भी ओही। तो वो क्या कहता है? वो कहता है जब वो मुझसे हिसाब मांगेगा मैं भी देखूंगा, वो भी हाय हाय वो भी। हुण मैं एक जुमला कहने लगा, अल्लाह रसूल वास्ते नहीं है, मेरे तो फतवा ना ला देना, ये आपके ज़ौक़ के आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तवज्जो, अल्लाह रसूल के लिए नहीं है, ये आपको तस्बीहन जुमला बता रहा हूं। फरमाया जब वो देखेगा मैं भी, बोलो बोलो, मैं भी। हुण जो जुमला समझ आवे तो दिल नाल बोली। कहता जब वो देखेगा मैं भी देखूंगा, वो भी देखेगा मैं भी देखूंगा, ओदा भी यार ते मेरा भी यार। मैं मान ते चुप रहा सौ सजना दे मुंह नु चुप कर जा। हाय 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 हाय। तभी तो कहा जेड़ी जन्नत दे वदा मान करे ना, तेरी जन्नत मूल न बरसो। जेड़ी दोजख दे तू डरावे देना, तेरी दोजख मूल न सरसू। आदा इया जन्नत दोजख शाला कायम रवी। हाय हाय। ते कहदा खाजा साहब तुसा क्या करे सो? आदा असा दामन यार दा फड़सू, गुलाम फरीदा साइया करम चकीता, और ना इथाड़ सू ते ना हाय हाय। तो वो क्या कहता? लोगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कोई राह सीधी नहीं है, एक ही राह सीधी है, वो जो मदीने को जाती है। हाय हाय, क्यों जाती है? बोलो बोलो, किधर जाती है? ख्वाजा अबू सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़े थे ना, हल चला रहे थे, तो कोई गुजरा, उन्होंने कहा बाबा साईं अहमदपुर वेणे। हाय 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 हाय, किधर वेणे? अहमदपुर। आपने फरमाया छोड़ आवा के राह दसा। हाय हाय, छोड़ आवा के राह दसा। उन्हें आख्या साईं छोड़ आओ तो वड्डी गल है, मोरना भूल जाइए। आपने फरमाया अखी बंद करो। हाय हाय हाय, क्या करो? अखा बंद करो। उन्हें अखा बंद कीतियां ते फरमाया खोलो, जे खोलियां तो सावे गुंबद खजरा। हाय हाय हाय। वो आदन बाबा ये किधर लाया है? हाय हाय हाय, बाबा ये किधर लाया है? आपने फरमाया असा ता हिक्के अहमदपुर नु जानने हैं, असा ता हिक्के अहमदपुर नु जानने हैं। और ओ अहमदपुर एडा सोना है, ओ अहमदपुर एडा सोना है भाई, दुआ
احمد پور جچدا ہی نہیں. ہائے 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 دعا احمد پور جچدا ہی نہیں. بندہ جدو اس لیول تے چلا جاوے نا, اس مقام پہ تعلق بنا لے مصطفیٰ کے ساتھ, پھر وہ کہتا ہے تو جنت مانگتا ہے نا, تو طلب کر رہا ہے نا, اپنے لیے مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے تو میرے یار کا وفادار, میں جنت تجھے ملکیت میں دے دوں. پہلے تو اپنے لیے مانگ رہا ہے, پھر تو ونڈی ودا. اے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. وہ کہتا ہے رے بندے گھبرا نہیں, پہلے تو تقدیر مانگتا تھا, پہلے تو تقدیر طلب کرتا تھا, پہلے تو تقدیر کا سوال کرتا تھا, تو میرے یار کا وفادار بن, میں تختی تجھے پکڑاؤں گا, جو دل کرے لکھتے جانا, جو دل کرے لکھتے جانا. اب جب اتنی خوبصورت بندے کی نسبت ہو, اتنا خوبصورت رشتہ ہو, اتنا خوبصورت تعلق ہو, تو پھر بندہ ادھر ادھر نہیں بھاگتا, پھر یار سے وفا رکھتا ہے. لوگوں حضور سے محبت کرو. کس سے؟ اوکھی گالے پر تھوڑی جی گال ہاتھ چوک کے کہو, کس سے؟ حضور سے پیار کرو. ہر پیار سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرو, اور وہ پیار اتنا حسین ہے. اگر تو سرکار تو ود کوئی سونا لبے تے او دے نال کر لینا. ہائے ہائے ہائے, اگر تو اتھوں ود کوئی سونا لبے تے کر لینا, تے جے اتھوں ود کوئی سونا نہ لبے, ہائے 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 بولی بولی, اتھوں ود کوئی سونا. میرا خطاب ختم ہو گیا ہے, بس بات ختم کر رہا ہوں صرف ایک پیغام دے کے, کہ اگر حضور سے ہنسی کوئی لگے تو ضرور کرنا, اگر حضور سے ہنسی کوئی نہ لگے تو پھر حق ہے حضور کا. ہائے ہائے, حضور سے بڑھ کے تو کوئی نہیں. خواجہ غلام فرید مرید دی نا, بس میرا خطاب ختم ہے, اس تے میں اختتام کر رہا ہوں. خواجہ صاحب دی نا مرید دی بیٹی دی شادی ہوئی, تے مرید نے نا بیٹی نو کیا بھی جا خواجہ صاحب نو مل لا, تے آدھا جدو شیخ جڑا ہوندا نا مرشد, او دے اگوں بہو نہیں بولیندا, جنی گل کریں نا انی دا جواب دیویں, انی دا جواب دیویں. میں نے یہ واقعہ بڑی جگہ بیان کیا اور مجھے ہر دفعہ ایک نیا لطف آتا ہے. آدھی خواجہ صاحب ٹھیک ہے, وہ گئی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, آدھی خواجہ صاحب کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ دا شکر ہے. آدھی آپ نے پوچھا پتر تیرا کیا حال ہے؟ آدھی سونا میں بھی ٹھیک ہاں. تے آپ نے پوچھا خواجہ صاحب نے پتر تیرے پیو دا کیا حال ہے؟ آدھی خواجہ صاحب میرے والد صاحب ٹھیک ہیں. تے آپ نے آدھی خواجہ صاحب فرمایا جی پتر, آدھی تواڈے پیو دا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ ساڈے والد صاحب بھی ٹھیک ہیں. تے تھوڑی دیر گزری نا, تے آپ نے فرمایا خواجہ صاحب نے, وہ پتر تیری شادی خیر نال تھی گئی ہے, بے تیری شادی خیریت سے ہوگی؟ آدھی جی سائیں میری شادی خیر نال تھی گئی ہے. تو تھوڑی دیر بعد آدھی خواجہ صاحب فرمایا جی پتر, آدھی تواڈی شادی خیر نال تھی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ ساڈی شادی بھی خیر نال تھی گئی ہے. تو تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب نے پوچھا پتر وہ تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ ہائے ہائے ہائے, تیرے دولے دا کیا حال ہے؟ آدھی سائیں الحمدللہ میرا گھوٹ ٹھیک ہے, میرا دولہ ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر بعد آدھی خواجہ صاحب فرمایا جی پتر, آدھی تواڈے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ ہائے ہائے ہائے, تواڈے دولے دا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ ساڈا گھوٹ بھی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا پتر او کدا ہی اپنا گھوٹ دکھائیں. ہائے ہائے, کبھی اپنا دولہ دکھاتی؟ آدھی اچھا سائیں کبھی ادھر آئے نا تو اس کو آپ کی بارگاہ میں لاؤں گی. تے ایڈی بھاگا علی آئی, تے کہندی خواجہ صاحب فرمایا جی پتر, آدھی کدائیں تو سامی اپنا گھوٹ بھی کھاؤ. ہائے ہائے ہائے, ترتالی والے ہو ذرا دل نہ سنی میری بات ختم. فرمایا کبھی تم بھی اپنا گھوٹ دکھاتے؟ آپ نے فرمایا وجد میں آگے. آپ نے فرمایا اے پتر اور میرا گھوٹ دیکھنا ہی؟ آدھی جیا سائیں دیکھنا ہے. یوں ہاتھ کیا کوٹ مٹھن سے مدینے تک پردے ہٹ گئے. فرمایا دیکھ اور بتا میرا ڈھولا کے ناس ہونا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, دارین کی نعمتوں سے نوازے. بھولا بھٹکا کوئی جملہ آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرا ہو, مسافر کربلا کا صدقہ معاف کیجئے گا. وما علیہا الا البلاغ.